But do we have Ankit also in this batch? Okay, team. Recording has been started. Yes, sir. So it's okay. As we as we discussed earlier, so in today's session, we'll start the multi-module application with nested routing. Correct. I already given you the insight like how or what and why we do multi-modules and why we have nested routing. All these things. Correct. What is module, why we need to use multi modules, what is the benefit of it, everything I'll explain you. So in today's session what we'll see is we'll see how part. Okay, कैसे करना है, कैसे multi module application बनाते हैं. So I think it will be better if we start from the scratch. So I'm going to file, open folder, go. So I have selected. Okay, now let's do one thing. uh, let's say cmd command prompt. Command prompt, and in the command prompt what I will do is I'll create a new project. So ng new, the command team ng new, sorry, and then project name. So I say multy multi what, multi module. Okay, multi module. So it will create an Angular application. And it is happening. Yeah, so this is happening. So it is saying which kind of CSS project you want. I say CSS. So now uh, so all the basic files has been created. जो बेसिक फाइल या फोल्डर जिसको हम बॉयलर प्लेट बोलते हैं, तो इनिशियल प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया. अब वो क्या कर रहा है, इट इज डूइंग द नोड इनिशियलाइजेशन. आई मीन नोड मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल कर रहा है, राइट. तो मल्टी मॉड्यूल इज अवर प्रोजेक्ट. या सो लेट्स ओपन दिस इन विजुअल स्टूडियो कोड. ओके, नोड मॉड्यूल्स की इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने देते हैं एंड देन वी स्टार्ट. Hello. यस.
If you don't have any question, please go on mute. Okay, installation होने देते हैं. अरे चलो भाई. It's happening. Just few more minutes. अभी हम दो सिंपल मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं, से कस्टमर और ऑर्डर्स, राइट. कस्टमर और ऑर्डर्स सिंपली सबको समझ में आता है. कस्टमर मतलब ऑर्डर्स, ऑर्डर्स में आपका ऑर्डर्स के लिस्ट या ऑर्डर्स, कस्टमर में कस्टमर लिस्ट, राइट. सो दो मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू गाइस टू अंडरस्टैंड, राइट. Yes, sir. ओके, पैरेलली ये कर रहा है तो हम भी एक काम करते हैं. पैरेलली हम भी अपने एटलीस्ट मॉड्यूल्स या मॉड्यूल्स राउट्स ये सब स्टार्ट करते हैं टू सेव टाइम. ओके, लेट दिस let this node module installation happen. Okay, so what we do is we'll start our terminal. ठीक है, हम अपना terminal start करते हैं. In our terminal now, what we need to do is we need to add basically a routing file. I need so okay. अभी तक हम लोग क्या करते थे? So far we were adding all our modules in app module. So first time what I will do is I will put all the routes in a separate routing file, or थोड़ा easy करने के लिए, just to make you guys understand, what I do is I'll still do routes in the app module file itself, but let's add new modules. नए components add करने की बजाय नए modules add करते हैं. Let's do that. तो नया मॉड्यूल कैसे हम ऐड करेंगे? जैसे हम नया कंपोनेंट ऐड करते हैं तो व्हाट इज द कमांड दैट वी यूज? ng g for generate, c for component, and then component name. So for module, what we'll write is we say ng g for generate, it's a module, and followed by module name, say customer. Okay, no problem. And the cmd ng g module customer, right? So what is happening to my keyboard? Some of the keys are not getting created. So डिलीट करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है.
ओके, दोबारा ट्राई करते हैं। कस्टमर ngg मॉड्यूल कस्टमर। ओके, सो ओके, कस्टमर नाम से एक मॉडल ऐड हो गया। एक और मॉडल ऐड करते हैं, से ऑर्डर। ओके, सो ऑर्डर मॉड्यूल भी क्रिएट हो गया। सो वी हैव टू मॉड्यूल्स नाउ। ठीक है, यू कैन सी बोथ द मॉड्यूल्स हैव देयर ओन एंट्री। बोथ द मॉड्यूल्स हैव देयर ओन एंट्री इन द रिस्पेक्टिव फोल्डर। कस्टमर के अंदर कस्टमर मॉड्यूल, ऑर्डर के अंदर ऑर्डर मॉड्यूल। तो यहाँ तक क्लियर है? ऑल गुड? कोई इशू, कोई डाउट सो फार? ओके, इंस्टॉलेशन अभी भी नहीं चल रही। हेलो, दोबारा से npmi करता हूँ इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज जब तक npm इंस्टॉल नहीं होगा, नोड मॉड्यूल्स नहीं आएंगे, हमारा प्रोजेक्ट वर्क नहीं करेगा। सो दिस npmi इज important, इट हैज टू वर्क। ओके, अभी तक कोई प्रॉब्लम बिफोर आई स्टार्ट द राउटिंग? अभी मैंने सिर्फ मॉड्यूल ऐड करे हैं। कोई इशू, कोई डाउट अभी तक? टीम, कोई इशू, कोई डाउट? हेलो, हेलो, बोलो नूर, बोलो बोलो। सर ये आई एम नॉट एबल टू गेट व्हाट यू आर सेइंग। तुम्हारी आवाज बहुत ब्रेक कर रही है। क्लास क्लास अटेंड किया है सर। नूर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा व्हाट यू आर सेइंग। किसी और को समझ में आ रहा है? इज इट ब्रेकिंग फॉर मी ओनली? No, sir. Anyone else able to understand what he's saying? No, sir. सर हेलो, हाँ बोलो नूर। सर ये बोल रहा है कि मेरा नेटवर्क सर 16 ये हो रहा था सर, तो क्लास अभी हम अटेंड किया सर, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। लास्ट क्लास अटेंड किया था? लास्ट क्लास तो अटेंड किए थे सर, तो अभी हाँ, सर तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? अभी नहीं, मल्टीपल लास्ट क्लास में हमने क्या मॉड्यूल। डिस्कस किया था? मल्टी मॉड्यूल स्टार्ट किया था, राइट? तो अभी हम मल्टी मॉड्यूल का ही प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि मल्टी मॉड्यूल कैसे ऐड करते हैं, राइट? तो अभी मैंने दो मॉड्यूल्स ऐड करे हैं। हमने जो लास्ट क्लास में थियोरेटिकली किया सर था, हम उसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं। ये सर, ये सब नूर, रिपीट योर क्वेश्चन सर एक बार ये फिर से बोल बोलो। रहे हैं हम्म कि
सर कमांड प्रॉम्प्ट में सर आप जो सर इंस्टॉल किए सर, तो वो समझ में नहीं आया सर। वो सर उसके बाद क्लास अटेंड किया सर हम। मैंने कुछ भी इंस्टॉल नहीं किया, मैंने अभी सिर्फ दो मॉड्यूल ऐड करे, ये कमांड्स है। ओके सर। ngg मॉड्यूल ऑर्डर, ngg मॉड्यूल कस्टमर, बस दैट्स इट, और कुछ भी ऐड नहीं किया। तो आप इंस्टॉल के बारे में बोल रहे थे सर, वो पूछ रहे थे। जो नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, मैंने सिर्फ एक नया प्रोजेक्ट बनाया, वो तुम्हें ऑलरेडी आता है नया प्रोजेक्ट बनाना। ओके सर। अगर किसी को नया प्रोजेक्ट बनाना नहीं आता है तो मेरे ख्याल से अभी ड्रॉप कर दो, बेटर है, क्योंकि ये तो बेसिक है। ओके, सो कमिंग बैक टू आई एम इनटू माय प्रोजेक्ट, और मैं npm i कर रहा हूँ क्योंकि नोड मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं है। npm i बिकॉज द नोड मॉड्यूल इज नॉट इंस्टॉल्ड, तो नोड मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहा हूँ npm i के थ्रू। ओके, तो npm इंस्टॉल होने दो, ठीक है, नोड मॉड्यूल फोल्डर को क्रिएट होने दो, लेट इट हैपन पैरेलली। अभी हम अपनी मॉड्यूल फाइल पे फोकस करते हैं जहां पर हमें अब राउट्स लिखने हैं, राइट। ये मेरी ऑर्डर मॉड्यूल है, ये मेरी कस्टमर मॉड्यूल है। अब ये चाइल्ड राउट्स लगाने से पहले, चाइल्ड राउट्स पे वर्क करने से पहले, लेट्स वर्क ऑन ऐप मॉड्यूल, मतलब जो जो पेरेंट मॉड्यूल है वो उनके राउटिंग स्टार्ट करते हैं पहले, राइट। टीम, इज इट क्लियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू? हम क्या करने जा रहे हैं? हम लोग ऐप मॉड्यूल में पहले पेरेंट जो राउट्स हैं वो लिखते हैं। पेरेंट राउट मींस जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उनकी राउटिंग स्टार्ट करते हैं, राइट। लेजी लोडिंग जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। तो कॉन्स्ट ROUTS राउट्स, करेक्ट। उससे पहले जो राउटिंग के जो इंपोर्ट्स हैं वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इंपोर्ट व्हाट फ्रॉम और स्लैश, सॉरी, @ एंगुलर राउटर, राइट। इनमें से एंगुलर राउटर में से वी विल ऐड राउटर आ क्यों नहीं रहा है? @एंगुलर राउटर से, तो अच्छा हाँ, स्पेस नोड अभी नोड मॉड्यूल अभी इंस्टॉल नहीं हुआ ना, इसलिए वो डिटेक्ट नहीं कर रहा। नो प्रॉब्लम। मुझे स्पेलिंग सबकी पता है, आइडिया है, तो आई कैन राइट इट बाय माय सेल्फ। राउट मॉड्यूल, ये दो मॉड्यूल हमें लेने थे, ठीक है। ये दो मॉड्यूल्स हमारे हो गए। अब इसके बाद व्हाट वी डू इज वी से कॉन्स्ट, अब राउट कॉन्फिग टेबल लिखते हैं, राउट्स इज इक्वल्स टू, अभी तक हम राउट्स में क्या मेंशन करते थे? पाथ एंड कंपोनेंट, यस और नो? क्या करते थे अभी तक हम? पाथ यस सर। एंड पाथ एंड पाथ एंड कंपोनेंट। अब क्या करेंगे? पाथ एंड लोड चिल्ड्रन मतलब लेजी लोडिंग मॉड्यूल्स, लोड चिल्ड्रन। लोड चिल्ड्रन का मतलब इंस्टेड ऑफ कंपोनेंट्स अगर मैं लोड चिल्ड्रन लिख रहा हूं, मतलब मैं मल्टी मॉड्यूल की बात कर रहा हूं, मैं लेजी लोडिंग की बात कर रहा हूं। नाउ आई एम गोइंग टू लोड द इंटायर मॉड्यूल, नॉट ओनली द कंपोनेंट। याद आ गया? लास्ट सेशन में किया था, करेक्ट? यस सर। क्लियर है या नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। एक मिनट रुकना बस।
Is my voice audible? Yes, sir. Yes, sir. Screen share करो. Okay. So now basically मैं क्या कर रहा हूँ? I'm loading my customer module. तो यहाँ पर मैं अपना customer module का path दूंगा. Slash customer module. Correct? Slash customer module. Right? After that, इसकी TS file की जरूरत नहीं है. Only dot module is good enough. And then you say dot then then and dot then you will say m dot module. Sir, what is the meaning of M is equal to M dot M customer, sir? Yeah. Is it audible now? Yes, sir. Sure. ठीक है. तो यहाँ मैंने क्या किया? I mean same old story. मैंने अपने component की जगह पर अगर मैंने कहा अगर path मेरा customer है तो क्या थ्रो करो? Load children. Which children? I mean load children means module. I'm going to load the module. But which module? I say customer module. Correct? Customer module. Who can install? ये एरर्स जो दिखा रहा है वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी तक हमारा नोड मॉड्यूल जो है वो इंस्टॉल नहीं हो रही है. It is dropping due to network. I guess it is getting disconnected because of the network. ठीक है. I have switched to a different network. तो अब ये वर्क करना चाहिए. करेक्ट. तो ये हमारा हुआ अभी. ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट हुआ. करेक्ट. फर्स्ट ऑब्जेक्ट हुआ. सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है? अच्छा ये कस्टमर मॉड्यूल. तो मॉड्यूल नेम प्रॉपर होना चाहिए वरना गड़बड़ हो जाएगी. मतलब वरना इट विल नॉट डिटेक्ट. सो अवर द नेम इज कस्टमर मॉड्यूल. तो वही कस्टमर मॉड्यूल यहाँ आना चाहिए. ओके. ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट था. सेकेंड ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही लिखेंगे. I know what happened to my system today. सेकेंड ऑब्जेक्ट भी ऐसे ही लिखेंगे. लेट्स स्टार्ट मेकिंग अ सेकेंड ऑब्जेक्ट. तो पहले मेंशन करते हैं पाथ. सो पाथ विल बी customer and next is order. Right. So उसके बाद we'll mention load children. Load children colon
ये मिस्टेक कर दी। वही सोच रहा है कि अपने आप इंटेलिजेंस क्यों नहीं आ रहा है, इंटेलिजेंस इसलिए नहीं आ रहा है। इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या? इंपोर्ट डॉट स्लैश ऑर्डर, राइट। ऑर्डर के अंदर क्या है? ऑर्डर के अंदर ऑर्डर मॉड्यूल फाइल है, ऑर्डर मॉड्यूल। देन डॉट ऑर्डर मॉड्यूल, राइट। ये हमारा सेकंड राउट हो गया, करेक्ट। ये हमारा सेकंड राउट हो गया। तो हमारे दो मॉड्यूल के राउट्स हो गए कि कस्टमर या ऑर्डर। अच्छा, कस्टमर और ऑर्डर अगर अगर नहीं है तो लैंडिंग, जब जो जो हमारा डिफॉल्ट पेज होगा, होम पेज होगा, उसका राउट कहाँ है? वो तो बाय डिफॉल्ट पेज है, करेक्ट। जैसे तुम माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाओगे या गूगल की साइट पे जाओगे, राइट। बिफोर तुम लॉग इन करो, बिफोर यू लॉग इन, यू हैव अ लैंडिंग पेज, होम पेज, करेक्ट। तो होम पेज के लिए व्हाट विल डू इज विल ऐड अ होम पेज कंपोनेंट, ताकि होम पे तो हम इजीली चले जाएं। सो what I will do is I will add one component, say ngGC home. तो एक काम करते हैं, होम पेज को, होम कंपोनेंट भी ऐड हो गया। होम कंपोनेंट को हम लोग जो है इंपोर्ट कर लेते हैं राउट में, राइट। सो विल से, और होम विल से path, path अगर empty है, मीन्स इफ देर इज नो पाथ, अगर कोई पाथ नहीं है तो क्या करोगे? इफ देर इज नो पाथ व्हाट यू विल डू? मीन्स अगर कोई राउट नहीं है तो तुम क्या करोगे? एम्प्टी रखेंगे। एम्प्टी है, अगर कोई पाथ नहीं है, फर्स्ट टाइम जब राउट नहीं है, मतलब तुम्हारा पेज लोड हो रहा है फर्स्ट टाइम, होम पेज लोड हो रहा है, लैंडिंग पेज लोड हो रहा है, तो तुम बोल रहे हो कि मैं रीडायरेक्ट करा देता हूँ, रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट रीडायरेक्ट टू, अभी भी नोड मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं हुए। रीडायरेक्ट स्पेलिंग करेक्ट है? यस, रीडायरेक्ट टू स्लैश होम, पाथ मैच, MATCH मैच फुल। उनका राउट बना देते हैं। कंपोनेंट, कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट? होम कंपोनेंट। सो होम कंपोनेंट हमें ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। होम कंपोनेंट डिक्लेरेशन में भी होना चाहिए, यू ऑल नो, दैट्स इट। यहाँ पर हमारा काम जो है खत्म होता है। तो अब क्या होगा कि अगर कोई पाथ नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन लोड होगी, उस टाइम पर जब कोई राउट नहीं होगा तो ये रीडायरेक्ट करेगा होम को,
एंड होम के लिए हमने ऑलरेडी पाथ बना दिया है, होम के लिए हमने ऑलरेडी राउट लिख दिया है, राइट? इतना क्लियर है टीम? आर वी गुड? यहां तक क्लियर हुआ? और अगर कोई ऑर्डर पर या कस्टमर को क्लिक करता है, अगर कोई ऑर्डर या कस्टमर मेन्यू को क्लिक करेगा, तो हम उस टाइम पर ऑर्डर या कस्टमर जो मॉड्यूल है वो लोड कराएंगे. इट इज अ क्लियर केस ऑफ लेजी लोडिंग. यहां तक क्लियर है सबको या कोई डाउट है? प्लीज सर में टीम क्लियर है या नहीं? हेलो टीम, इज द वॉइस ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. अभी तक सबको क्लियर है या कोई डाउट है? Yes, sir. Clear. धीरज, राज, भानुप्रिया, तुषार, ऋतुराज, सुमित. Yes, sir. Yes, Huh? sir. Yes, sir. Okay. Dhiraj, what about you? Dhiraj, what about you? Dhiraj, you're there in the class? Dhiraj, you're there in the class? Okay. Bhanupriya? हेलो Bhanupriya? हेलो सर हेलो हाँ, धीरज क्लियर है तुम्हें अभी तक? नो सर आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन I did not get it, Dhiraj. Is it clear to you or not? हेलो अभी तक क्लियर है इज जो द हमने वॉइस किया है? या सर इट इज क्लियर बट सर आई डिडंट अंडरस्टैंड द रीडायरेक्ट टू पार्ट So फिर पूछा क्यों नहीं? Why didn't you ask? आई एम सेइंग बट माय वॉइस इज नॉट Okay. ऋतुराज, तुम्हें क्लियर है? ऋतुराज, भानुप्रिया, are you there in the session? Yes, sir. Okay. Bhanupriya, you there? Bhanupriya? Bhanupriya? Bhanupriya, you're there in the session? Okay, no problem. So Lalit, you are there? Yes, sir. क्लियर है जो अभी तक किया हमने? Yes, sir. किसी को कोई डाउट अभी तक? इन द रीडायरेक्ट टू पार्ट आई हैव अ डाउट So what I told is कि अगर if हमारी एप्लीकेशन फर्स्ट टाइम लोड हो रही है, फिर एप्लीकेशन इज लोडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम पे कोई भी राउट नहीं होगा, कोई भी पाथ नहीं होगा, कोई भी राउट नहीं होगा. सिर्फ ऐसा होगा जैसे google.com और facebook.com, राइट, और youtube.com, तो कोई राउट नहीं होगा उसके आगे. तो अगर पाथ एम्प्टी है, मीन सिर्फ राउट एम्प्टी है, तो होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दे, किसी एक डिफॉल्ट राउट पे जाना पड़ेगा ना. तो अगर कोई भी राउट नहीं है, कोई भी पाथ नहीं है, फर्स्ट टाइम अगर एप्लीकेशन मतलब लोड हो रही है, राइट, सर्वर से, और कोई पाथ या राउट मेंशन नहीं है, तो उस केस में आप रीडायरेक्ट कर दो होम पर, होम राउट पर. और होम राउट क्या है, हमने वो भी नीचे बनाया हुआ है. इन होम राउट व्हाट वी आर गेटिंग इज, अगर पाथ होम है, करेक्ट, तो उस केस में होम कंपोनेंट लोड हो जाएगा. दैट्स इट. So what is this path match? Path match full means complete route. Redirect to complete route. Why npm install is not happening here? What happened? I think you mentioned
बिना इसके तो चलेगा ही ना। So yeah, I think you have to close everything first, and I think it is taking too much time because it is consuming too much energy behind. I think that's why. So it is saying something else. Okay, I'll do it from here. I have added one more terminal, and from here I'm saying npmi. Let's see. Please upgrade your dependency to actual version of Corejas. Okay. अरे यार. Grade 2 नहीं चाहिए मुझे चौकीदार. Okay. 2 will break on node 14 upgraded. Just check my node version. I think you have to clear cache, npm cache. Node version 12. Okay. What is the Angular version I'm carrying? Package. Yeah. Package.json. Okay. It's a Angular 8. Not the latest one. Angular 12. Okay. It should not have an effect on npm install actually. But npm install is also. Okay. अपडेट करके कोई फायदा नहीं है npm. क्या गड़बड़ है? कमांड में गड़बड़ है npm clean cache. npm का वर्जन तो अपडेटेड है मेरे पास, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए. npm cache clean, not clean cache. Cache clean. कहाँ से हटा जाते हैं? Okay. एक बार क्लीन करने के बाद npm install पे लगा देते हैं and then we continue our routing. But npm install has to happen, otherwise हमारा project चलेगा नहीं. You all know that, I guess.
तो वाकई सिस्टम ने दुखी कर दिया यार, इट्स लाइक टू मच। डन और नॉट डन? अच्छा, मीनवाइल एक बार जरा एरर देखते हैं कि एरर क्या आ रहा था जब हमने इंस्टॉल किया। राइट, नेट पे सर्च करते हैं। एरर क्या आ रहा था when we did npm install, इन सब के बाद एरर अनएक्सपेक्टेड जैसे इनपुट while passing this। ओके, इसी को सर्च करते हैं। Chrome, let's open Chrome। ओके, सो हमारा npm भी क्लीन हो गया है, नोट क्लीन हो गया है, आई मीन सॉरी कैश क्लीन हो गया है। नाउ लेट्स डू वन थिंग, दोबारा से एक बार npm इंस्टॉल करते हैं। npm चलो दोस्त, ओके, इसको करते हैं and again we jump on our routing, okay, multi modules। so यहाँ तक सबको क्लियर है राइट? हमारा डिफॉल्ट जो राउट है, अगर कुछ भी नहीं है पाथ में, कोई भी राउट नहीं है, कोई भी मॉड्यूल, कोई भी राउट बाय डिफॉल्ट नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये होम पर जाएगा, रीडायरेक्ट हो जाएगा होम पे। अगर कोई पाथ नहीं है, कोई राउट नहीं है यूआरएल के अंदर विच
मीन्स एप्लीकेशन सर्वर से कॉल हुई है, करेक्ट। तो उसके केस में होम पेज बाय डिफॉल्ट पेज होगा, सो होम कंपोनेंट जो है कॉल हो जाएगा। होम विल बी द डिफॉल्ट राउट, लाइक xyz.com/home, और ये होम कंपोनेंट कॉल होगा, और जो भी हमने होम कंपोनेंट के HTML में मेंशन किया होगा सब कुछ आ जाएगा। बट इंस्टेड ऑफ होम, मतलब आफ्टर लैंडिंग ऑन होम, अब वहां होम पे से कोई कस्टमर पे या ऑर्डर पे क्लिक करता है, राइट। तो कस्टमर और ऑर्डर मॉड्यूल्स लोड होंगे, कस्टमर एंड ऑर्डर मॉड्यूल्स लोड होंगे। तो क्या हमने कस्टमर मॉड्यूल फाइल में राउटिंग मेंशन करी है? नो, वी हैव नॉट डन इट येट। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर राउटिंग मेंशन करते हैं, राइट, कस्टमर राउट मेंशन करते हैं। सो व्हाट आई विल डू इज आई से इंपोर्ट, अच्छा इंपोर्ट फिर से वही इंपोर्ट करना है @angular राउटर, राइट। यहाँ पर हम लेंगे राउट्स एंड राउटर मॉड्यूल, राउटर मॉड्यूल, ओके। एक छोटा सा काम जो हमने नहीं किया, ये तो राउटर मॉड्यूल है, ये राउटर मॉड्यूल। रिमेंबर फर्स्ट राउटिंग सेशन में मैंने तुम्हें क्या बताया था कि ये जो राउट्स हैं ये तो हमने एक एक एरे बनाया है, ये तो एक एरे है, कांस्टेंट एरे है, बट ये कहीं पर मेंशन है, मतलब ये हुक होगा क्या? जब हमारी ऐप मॉड्यूल लोड होगी, जब हमारी ऐप मॉड्यूल रन करेगी, बूटस्ट्रैप होगी, तो उस टाइम पे क्या ये राउट्स जो हैं ये लोड होंगे अभी फिलहाल? व्हाट यू से, लोड होंगे क्या टीम? क्या ये लोड होंगे? No, sir. कोई रीजन वाई 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 वाई? क्यों? सुमित, अभिलाष, धीरज, तुषार, ऋतुराज, ललित, क्यों लोड नहीं होंगे? कोई आइडिया, कोई और रीजन? क्योंकि हमने इनको इंजेक्ट नहीं किया, हमने इनको इंजेक्ट नहीं किया। अगर तुमने प्रैक्टिस की है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि वी नीड टू पुट द मॉड्यूल्स राइट इन द इंपोर्ट सेक्शन, और राउटिंग के केस में हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? डॉट फॉर पेरेंट और चाइल्ड, डॉट फॉर पेरेंट और चाइल्ड, क्या लिखूं यहाँ पर मैं? Child, sir. आई मीन फॉर रूट और चाइल्ड, Child. नो, Child, sir. यहाँ जो है, ये तो रूट है ना, ऐप डॉट मॉड्यूल में तो रूट आएगा ना, रूट राउट्स हैं, पेरेंट राउट्स हैं, रूट राउट मींस पेरेंट राउट्स हैं, राइट, ये पेरेंट राउट्स हैं। जब मैं चाइल्ड मॉड्यूल में जाऊंगा वहां चाइल्ड लिखूंगा, क्लियर हुआ? अब चलते हैं कस्टमर मॉड्यूल, मतलब जो चाइल्ड मॉड्यूल है, यहाँ पर चलते हैं, एंड यहाँ पर भी सेम टू सेम हम लोग राउट लिखते हैं, करेक्ट। const ROUTS routes, router, I mean sorry, routes, routes equals to अब यहाँ देखो, हम अपना फर्स्ट चाइल्ड राउट लिख रहे हैं, अपना फर्स्ट चाइल्ड राउट लिख रहे हैं, किसके लिए? कस्टमर के लिए। तो तुम बताओ, अच्छा कस्टमर के लिए मैं क्या क्या लिखूं एज पर डायग्राम? कस्टमर का हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किया ना, तो बोलो, तुम बोलो, कस्टमर के क्या राउट्स हो सकते हैं, मतलब कस्टमर की क्या फंक्शनलिटी हो सकती है तुम्हारे हिसाब से, एज पर यू? टेल मी टीम, कस्टमर की क्या फंक्शनलिटी हो सकती है, मतलब क्या क्या फंक्शनलिटी कस्टमर के लिए हो सकती है, या कस्टमर से रिलेटेड हो सकती है हमारी एप्लीकेशन में? So name, username, नो password. नो नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वन। Help. The help. कस्टमर फंक्शनलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, कस्टमर फॉर्म की बात नहीं कर रहा। सो लिस्ट ऑफ कस्टमर, ओके। तो अगर लिस्ट ऑफ कस्टमर फंक्शनलिटी है तो मुझे क्या करना चाहिए?
मुझे कंपोनेंट ऐड करना चाहिए, राइट? NG-GC क्या बोलूं, कस्टमर लिस्ट, कस्टमर लिस्ट, राइट? और क्या फंक्शनलिटी हो सकती है? अच्छा, ये मुझे किसके अंदर ऐड करना है? ये मुझे ऐड करना है कस्टमर मॉड्यूल में, राइट? तो मुझे बेसिकली कस्टमर मॉड्यूल तक जाना चाहिए। तो सोर्स के बाद ऐप, ऐप के बाद कस्टमर। नाउ आई एम इनसाइड कस्टमर फोल्डर। तो मुझे यहाँ पर मुझे कस्टमर लिस्ट कंपोनेंट डालना चाहिए, ठीक है? और कस्टमर में क्या फंक्शनलिटी हो सकती है तुम्हारे हिसाब से कस्टमर लिस्ट के अलावा? कस्टमर मॉड्यूल में और क्या फंक्शनलिटी हो सकती है? कस्टमर लिस्ट इज So वन, customer देन Customer history. customer type, तुम फॉर्म की बात कर रहे हो। ओके, क्रिएट कस्टमर। ऐसे मैन्युअली मुझे कस्टमर क्रिएट करना, तो क्रिएट कस्टमर, राइट? और ऐड कस्टमर, जो भी शॉर्ट में लिख सकते हैं वो, ठीक है? ऐड कस्टमर। सो मेरी दो फंक्शनलिटी हैं कस्टमर मॉडल के अंदर। अगर तुम लास्ट सेशन को अगर तुम ध्यान रखोगे ना, इफ यू रिमेंबर लास्ट सेशन, यही हमने डिस्कस किया था। वी आर एक्चुअली नॉट बॉदर्ड अबाउट कि हम मॉड्यूल्स बना रहे हैं, हमें अपनी फंक्शनैलिटी को ब्रेक करना है फीचर में। तो एक और अभी एक और हमने आज हमने एक और फीचर मेंशन किया, कस्टमर, राइट? और कस्टमर फीचर में हम जो है फंक्शनैलिटी लिख रहे हैं, जैसे ऐड कस्टमर, ठीक है? ऐड कस्टमर और कस्टमर लिस्ट। कस्टमर लिस्ट। customer list. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो Yes sir. दो फंक्शनैलिटी है, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने दो कंपोनेंट्स ले लिए, राइट? अब दो कंपोनेंट्स लेने के बाद मैं यहाँ पर इनका राउट्स बना दूंगा, कैसे? नो, जैसे पाथ, कस्टमर लिस्ट। अगर कस्टमर लिस्ट पाथ है, क्या होगा? कौन सा कंपोनेंट लोड होगा? कस्टमर कंपोनेंट। Customer. कस्टमर लिस्ट कंपोनेंट। कस्टमर लिस्ट Exactly. कंपोनेंट। कस्टमर लिस्ट कंपोनेंट लोड होगा, राइट? ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड राउट हमारा अगर पाथ है क्रिएट कस्टमर, चलता है, अगर पाथ हुआ क्रिएट कस्टमर, तो कौन सा कंपोनेंट लोड होगा? ऐड कस्टमर। Create ऐड customer. कस्टमर, Customer. राइट? और अगेन डिफॉल्ट राउट, Home. नहीं, यहाँ क्यों होम आएगा? आप जब फर्स्ट टाइम कस्टमर पर लोड करोगे, कस्टमर मॉड्यूल पर लोड करोगे, राइट? तो क्या मॉड्यूल, मतलब किस पर लैंड करना चाहिए इसे? क्या लोड करना चाहिए इसे? Parent sir. Add customer. क्या लोड करना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? कस्टमर। जय कस्टमर लिस्ट, redirect to customer list, correct? Sir why customer list? ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया. बताओ और क्या लोड करोगे? जब कोई मेन पेज से कस्टमर पे क्लिक करेगा, कस्टमर टैब पे क्लिक करेगा, कस्टमर मेन्यू पे क्लिक करेगा, तो तुम बाय डिफॉल्ट क्या दिखाना चाहते हो उसे? क्या दिखाओगे? अगर तुम कहते हो कि बाय डिफॉल्ट क्रिएट कस्टमर
वाला फॉर्म दिखाए तो मैं क्रिएट कस्टमर कर लेता हूँ। अगर तुम कहते हो कि लिस्ट ऑफ कस्टमर दिखाना चाहिए, मैं लिस्ट ऑफ कस्टमर कर देता हूँ। बोलो, तुम बोलो। Yes, sir. Customer list. राइट, अगर ऐसा है तो नहीं, वो तो हमने ऑलरेडी बना दिया ना, दोबारा क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. बेटर है इसको टॉप पे लिखो कि सबसे पहले यही रीड हो कि अगर पाथ एम्प्टी है और अब आप कस्टमर मॉड्यूल पे जस्ट लैंड हुए हो, तो अगर एम्प्टी है तो रिडायरेक्ट कर दो कस्टमर लिस्ट पे, मतलब इस वाले पाथ पे। जब इस वाले पाथ पे या राउट पे जब वो डायरेक्ट होगा, रिडायरेक्ट होगा, तो कस्टमर लिस्ट कंपोनेंट अपने आप कॉल हो जाएगा। करेक्ट। ऑर्डर्स करने से पहले हम पहले ये चेक करते हैं कि ये बेसिक वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी भी ये हुक नहीं हुआ है, सिर्फ हमने क्रिएट किया है बट ये हुक नहीं हुआ है। तो इसे हुक करने के लिए क्या करेंगे, मैं अगेन इंपोर्ट्स पे आऊंगा। इंपोर्ट्स पे हम लोग लिखते हैं राउटर, काइंडली गो ऑन म्यूट प्लीज। राउटर मॉड्यूल डॉट फॉर चाइल्ड। अब मैं चाइल्ड करूंगा, क्यों? क्योंकि ये नेस्टेड मॉड्यूल्स हैं, चाइल्ड मॉड्यूल्स हैं, तो इसकी राउटिंग भी चाइल्ड राउटिंग है। ठीक है, तो फॉर चाइल्ड। अब ये हुक हो गया। अब जब भी कस्टमर मॉड्यूल लोड होगा तो ये पूरी राउटिंग जो है लोड हो जाएगी एंड हेंस इट विल वर्क। ठीक है, ये सब तो हो गया, आई मीन दिस इज ओके, बट हमने लिंक्स कहाँ क्रिएट किए, राउटर लिंक्स कहाँ क्रिएट किए, राउटर आउटलेट कहाँ क्रिएट किया। करेक्ट, तो उसको देखते हैं एक बार। यहाँ पर ULLI जैसे लास्ट टाइम मैंने किया था, मैं लिंक्स ऐड करता हूँ। एंकर टैग यहाँ पर लिखते हैं राउटर लिंक इक्वल्स टू से कस्टमर। ठीक है, जो मैंने इसमें सब लिखना हो नहीं, देन ऑर्डर शॉर्ट में ऑर्डर यहाँ आएगा, ऑर्डर यहाँ आ जाएगा ब्लैंक। ब्लैंक होगा तो अपने आप वो होम पर आ जाएगा। नीचे डालते हैं राउटर आउटलेट। आज मैं तुमको बहुत सिंपल नेस्टेड राउटिंग या मल्टी मॉडल बताइए। ये जिनको नहीं आता है, जो जो नहीं समझते हैं इसको, वो बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ही नेस्टेड राउटिंग करनी चाहिए। अभी मैंने बहुत सिंपल वाली की है बट स्टिल बहुत बेटर है। व्हाई? एंड इट इज अप टू द मार्क, क्योंकि हमने लेजी लोडिंग इंट्रोड्यूस किया है, जो मेन मोटिव है हमारा मल्टी मॉड्यूल का। ठीक है, तो इतना होना तो जरूरी था ना, ये नहीं होगा तो चलेगा कैसे, राइट? सिंगल पेज एप्लीकेशन बनेगी कैसे? अब देखो एक पॉइंट कि इसका मतलब जब तुम कस्टमर पे क्लिक करोगे तो कस्टमर मॉड्यूल लोड होगा, यस और नो? तो जब कस्टमर मॉड्यूल डायनेमिकली लोड होगा तो राउटर आउटलेट होना चाहिए। अग्री? Yes, sir. अग्री? Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ कि जब कस्टमर मॉड्यूल लोड हो जाएगा, करेक्ट, तो वहां पर भी तो कोई राउटर आउटलेट होना चाहिए। कस्टमर मॉड्यूल के जो राउट्स हैं वो कहाँ लोड होंगे डायनेमिकली? यू गॉट माय पॉइंट? क्या बोला मैंने? मेरी बात क्लियर हुई है नहीं? अच्छा चलो, तो मैं दिखाता हूँ, पहले करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम
npm start या ng सर्व करते हैं। करेक्ट, पहले एप्लीकेशन चला के देखते हैं, पहले देखिए वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, फिर तुम्हें समझाता हूँ। अगेन पहले इतना हम फोकस करते हैं कि इतना काम कर जाए। ओके, तो ये कुछ इश्यूज हैं, जैसे उसने बोला कैन नॉट फाइंड राउटर्स। ओके, कहाँ पर? ऐप मॉड्यूल में। चलो ऐप मॉड्यूल चलते हैं, यहाँ उसे राउटर्स नहीं, अच्छा ठीक है सही बोल रहा है वो, राउट्स है, राउटर नहीं है, राउट्स है। तो ये एक प्रॉब्लम है, और ये जो है हमारा ये राउटर मॉड्यूल होना चाहिए। हाँ ये राउटर मॉड्यूल है, नॉट राउट मॉड्यूल, तो ये भी ठीक है। और क्या मिस्टेक है? लोड चिल्ड्रन आगे एल लगा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, और क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं। अच्छा ये भी राउटर मॉड्यूल होगा, नॉट राउट मॉड्यूल। ओके दैट्स इट। आप देखते हैं अब ये वर्क करना चाहिए। Brilliant, it's working। सो क्रोम पे चलते हैं, क्रोम पे चल के यहाँ पर हम लोकल होस्ट अपना रन करते हैं 4200 नॉट 4000। ठीक है, ठीक है टीम, बाय डिफॉल्ट होम आ गया जो हम चाह रहे थे। ऑर्डर्स के राउट हमने लिखे नहीं है। लेट्स सी कस्टमर, जब कस्टमर पे क्लिक कर रहे हैं तो ये वर्क नहीं कर रहा है। लेट्स सी कि कोई एरर आ रहा है या नहीं। बिल्कुल एरर आ रहा है। वो क्या बोल रहा है कि कैन नॉट मैच एनी राउट बाय यूआरएल कस्टमर लिस्ट। ओके, तो बिल्कुल मिस्टेक है, और मिस्टेक क्या है? गिव मी अ मिनट। ओके, मैं एक काम करता हूँ, अभी कस्टमर मॉड्यूल में फॉर अ मिनट इसको रीडायरेक्ट करने की बजाय मैं ऐसे कर देता हूँ। तो कोई बात नहीं है, तो कस्टमर लिस्ट कंपोनेंट लोड हो जाए। ऐसे इतना होता है कि नहीं होता है? लोड चिल्ड्रन किया था मैंने, एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ लोड चिल्ड्रन, फॉर चिल्ड्रन किया था, बिल्कुल फॉर चाइल्ड किया था, एब्सोल्युटली करेक्ट। राउट्स ऊपर डाल दिए, दैट इज आल्सो करेक्ट। ओके लेट्स सी, दोबारा चलते हैं कस्टमर पर, एंड यस कस्टमर लिस्ट इज वर्किंग करेक्ट, क्योंकि मैंने क्या बोला? मैंने बोला अगर एम्प्टी है, अगर कोई राउट नहीं है, तो ये कोई राउट नहीं है अगर, तो ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, कस्टमर लिस्ट ऐड हो जाएगा। करेक्ट, तो अब अगर आप इसको देखो तो लेट मी शो यू समथिंग। दो तीन चीजें बता रहा हूँ, ढंग से देखना। ओके दैट्स इंपॉर्टेंट। तो जब फर्स्ट टाइम लोड हुआ तो तुम देखो ये पूरी पूरी एप्लीकेशन लोड हो गई, करेक्ट। अब जब मैं कस्टमर पे क्लिक करूंगा, कस्टमर पे ढंग से देखना नेटवर्क कॉल को, जब मैं कस्टमर पे क्लिक करूंगा यू कैन सी देन ओनली कस्टमर मॉड्यूल गॉट लोडेड। देखा या नहीं टीम, देखा या नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 234 बाइट जो है, मतलब सोचो अभी अभी कुछ नहीं है, तो अभी 234 बाइट है।
अब जब इस मॉड्यूल में हम लिखना शुरू करेंगे, जब इस मॉड्यूल को हम एक्सपैंड करना शुरू करेंगे, मतलब क्रिएट कस्टमर, लिस्ट कस्टमर, दिस दैट, सर्विसेज, पाइप्स, मोर कंपोनेंट्स, कस्टम डायरेक्टिव्स, राइट? तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। नाउ यू अंडरस्टूड। ऐसे अगर 20 मॉड्यूल्स भी हैं, ऐसे अगर ये सारे मॉड्यूल्स हमारे पास हैं, ये वाले 1 2 3 4 5, करेक्ट? और ऐसे ये तो बेयर मिनिमम है, बट ऐसे अगर हमारे पास 10-15 भी मॉड्यूल्स हैं और हम सारे के सारे एक साथ लोड करते हैं, सो नाउ यू अंडरस्टूड क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम होगी। इसीलिए लेजी लोडिंग या मल्टी मॉड्यूल हम लोग करते हैं। क्लियर है? अभी तक ऑर्डर लोड नहीं हुआ, बट अगर मैं क्लिक करूंगा ऑर्डर पर, राइट, देन ओनली ऑर्डर मॉड्यूल विल लोड। सी, देख रहे हो टीम? Yes, sir. yes or no? Correct? Yes, sir. तो ये Yes. completely dynamic loading है। This is what I wanted to show you. ठीक है? क्लियर हुआ? अब तुम कस्टमर के अंदर अपनी पूरी कस्टमर फंक्शनैलिटी कंटिन्यू कर सकते हो, ऑर्डर के अंदर अपनी पूरी ऑर्डर फंक्शनैलिटी कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, अब यहां से दूसरी स्टोरी, आई एम क्लोजिंग द सेशन टुडे, बट आई जस्ट वांट टू शो यू वन मोर थिंग। अभी मतलब ये अभी खत्म नहीं हुआ है, दिस इज नॉट एंड येट। अब जब हम कस्टमर पे पहुंच गए हैं, तो यहां पर भी तो राउट्स होने चाहिए। जैसे अभी तो मैंने बाय डिफॉल्ट कस्टमर लिस्ट को डाल दिया, बट टेक्निकली जब मैं कस्टमर पे क्लिक करूंगा तो मेरा कस्टमर डैशबोर्ड आना चाहिए, या हाँ, कस्टमर डैशबोर्ड आना चाहिए। वहां पर लिंक्स होने चाहिए, वहां पर फर्दर लिंक्स होने चाहिए कि तुम्हें कहाँ जाना है, कस्टमर लिस्ट पर जाना है, क्रिएट कस्टमर पे जाना है, लेट्स से अपडेट कस्टमर पे जाना है, एडिट कस्टमर पे जाना है, करेक्ट? राइट? यस और नो? जैसे यहाँ पर लिस्ट है, वैसे कस्टमर पर भी तो लिस्ट होनी चाहिए, Yes, sir. करेक्ट? तो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड राउटिंग। नेस्टेड राउटिंग। अभी हम मल्टी मॉड्यूल या नेस्टेड मॉड्यूल में थे, अभी जो हमने किया वो नेस्टेड मॉड्यूल या मल्टी मॉड्यूल एग्जांपल है, बट नेस्टेड राउटिंग का नहीं है। नेस्टेड राउटिंग का अब आएगा कि जब जब कस्टमर के भी अपने नेस्टेड राउट्स होंगे, राइट, चाइल्ड राउट्स होंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ एक है, राइट, डिफॉल्ट वन, नेस्टेड नहीं है, चाइल्ड नहीं है, डिफॉल्ट है। क्लियर है या नहीं? Yes. अगर अगर कस्टमर के अपने राउट्स होंगे तो इसका मतलब कस्टमर का अपना राउटर आउटलेट भी होगा और होना चाहिए, विच मींस कि ऐप का राउटर आउटलेट में तो ये कस्टमर, ऑर्डर, होम ये लोड होगा, बट कस्टमर का भी जो अपना राउटर आउटलेट होगा उसके अंदर कस्टमर के जो जो राउट्स हैं वो लोड होंगे। अगर तुम अभी देखोगे तो ये राउटर आउटलेट, राइट, और कस्टमर लोड हो गया, बट कस्टमर के भी तो अपने लिंक्स होंगे, जैसे क्रिएट कस्टमर, डिलीट कस्टमर, अपडेट कस्टमर, कस्टमर लिस्ट। तो वो जो डायनेमिक कंपोनेंट्स होंगे, इसका मतलब उनके लिए भी राउटर आउटलेट होना चाहिए जो कस्टमर पे लिखा जाएगा, विच विल बी देयर इन द कस्टमर मॉड्यूल, राइट? तो Yes, कस्टमर sir. के अपने जो अपने जो लिंक्स होंगे, या मैं बोलूं राउटिंग होगी, उसको हम बोलेंगे नेस्टेड राउटिंग और चाइल्ड राउटिंग। तो वो अभी हमने नहीं करी, दैट इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी गोना डू। ओके, तब तुम क्या देखोगे कि ऐप राउट के अंदर एक राउटर आउटलेट है जो कस्टमर या ऑर्डर को होस्ट कर रहा है। फिर तुम देखोगे जब तुम कस्टमर को एक्सपैंड करोगे तो कस्टमर के अंदर एक और राउटर आउटलेट होगा जो कस्टमर के राउट्स को होस्ट कर रहा होगा, कस्टमर के डायनेमिक कंपोनेंट्स को लोड कर रहा होगा। इतना क्लियर हुआ सबको या नहीं? Yes, sir. हाँ, यस और नो? Yes, sir. एज एन असाइनमेंट, कंप्लीट द ऑर्डर, करेक्ट? तुमको रिकॉर्डिंग दे रहा हूं मैं। कंप्लीट द ऑर्डर द वे वी हैव डन फॉर दिस वन कस्टमर, ठीक है? ऐसी ऑर्डर का कंप्लीट करो, और फिर नेक्स्ट सेशन में either tomorrow or day after tomorrow, anywhere, right? So any day I mean to say. So make sure you practice today itself. Okay? तो हम आगे कस्टमर और ऑर्डर के राउट्स को या चाइल्ड राउट्स को कंटिन्यू करेंगे लिखना, ठीक है? क्लियर है? Okay, sir. मैं एप्लीकेशन भी तुमको कंप्रेस करके व्हाट्सएप पे दे देता हूँ, सो दैट इन केस अगर रिकॉर्डिंग आने में टाइम लगे तो तुम एटलीस्ट ये एप्लीकेशन देख सकते हो।
ठीक है। Yes, sir. आई वुड प्रेफर कि तुम स्क्रैच से बनाना जैसे आज मैंने बनाई है। ओके सर इसका रिकॉर्डिंग से सेंड कर दिया है जल्दी सर। नहीं अब नहीं करूंगा, अब मुझे पता है तुम लोग कॉपी पेस्ट करोगे, बेटर तुम रिकॉर्डिंग देख के करो। अगर तब भी नहीं होता तो मुझसे बोलना, आई विल सेंड इमीडिएटली, डोंट वरी। ठीक है Thank you, sir. सर आज ही कर दीजिएगा सर रिकॉर्डिंग सेंड। हाँ रिकॉर्डिंग पहले क्लास सेशन खत्म होगा नो तो सर, रिकॉर्डिंग बनेगी ना। सर हाँ मैं कर देता हूँ, हाँ मैं इसलिए कर देता हूँ। मैंने इसलिए मैंने बोल रहे हैं सर। मैंने पहले की भेज दी है तुमको, तुमने देखा होगा पहले की भेज दी है मैंने। तो वो देख लें सर, इसलिए बोल रहे हैं सर कि इसे लास्ट आज रिकॉर्डिंग नहीं है सर, लास्ट। लास्ट रिकॉर्डिंग में थ्योरी थी, मैं वो भी भेज यस देता सर। हूँ, वो भी भेज देता ओके हूँ। सर। 30 मिनट्स अगर नहीं मिलती 30 मिनट्स में तो प्लीज रिमाइंड कराना। ठीक है सर ये वाला हाँ। आज वाला रिकॉर्डिंग चल भेज दिया सर, आज ही भेज दिया ये वाला रिकॉर्डिंग। ठीक है ओके ओके सर। बाय। Okay, sir. Thank you, sir.